Welcome to one of the many circle sessions hosted by Wonder Girls. Wonder Girls is a nationwide classrooms movement. We bring relatable female role models into classroom settings through our circle sessions. As you will see, the crux of these sessions is its dialogic nature. We're currently working with 150 plus classrooms across 7 Indian cities. Our aim is for every adolescent in India to have access to relatable female role models. I welcome you once again and hope you enjoy learning from our speakers' life journey and career path. All right. A very, very good evening to all of you. Good evening, Dee. Good Hello, Dee. evening. Have a good evening. Good evening. Good evening. Good Good evening, Dee. evening. Good I would evening. like all of you, I would request all of you to go to the chat box and say a very, very big hi to Vaishnavi. Didi, she's here with us. Hello. Hi, all of you lovely girls. Vaishnavi, I'm sorry. You're Yeah. on mute. I apologize. Am I still on mute? No. I No, can right? hear Yeah. I was just going to say that a lot of us are here, so I would request you to go on the chat box and just see all the highs that you're getting. Yes. All right. Okay, while we have some students still joining us, girls, here is a short, quick to-do that all of us have to do while we're waiting for more people to join us. Vaishnavi, you can also go ahead and do this. Let's rename ourselves with our favorite musician's name. Okay, so write your name first. Yes, any singer that you really, really like, write your name first, underscore that musician's name. All right, let's do this in the next 2 minutes and then we'll begin. Let's rename ourselves. Okay, so I can do this too, right? Yes, you can. You just have to go to the rename option, yeah? Yes, Ragini, I see you raising your hand. Go ahead. Hi, Dee. Hi. Hi, Let's Vaishnavi Dee. Hello. Okay, I see that Kirti has renamed herself. Thank you for doing Hello, that, Vaishnavi Kirti. Didi. All right. I also see we have Himanshi who has renamed herself. I see underscore Ed Sheeran. I see underscore BTS. I see underscore Maggie. I'm seeing such interesting artists all over. We will take one more minute and then we'll begin. Waiting for more people to rename themselves. I see Anvi Didi has renamed herself as Beyonce. Absolutely love that. On that note, I would like to introduce myself first. So I will be facilitating this space today. My name is Riddhi Satti. I'm a fellow with Teach for India. This is my first year of fellowship. And I am a Didi to 56 beautiful girls of Sarvodaya Kanya Vidyalaya Ayanagar who are here with us today, who are super duper excited to be here and meet you. And the reason I feel that we need to do this is because I feel that it's very, very important for me also, not just the students, but for me also to see important role models around us, female role models who we can gain a lot of inspiration from. And thank you so much for doing this for us, Vaishnavi. And I hope that this experience is as fruitful for you as it will be for us. On that note, over to you. We would love to hear more about your journey, how you decided to become an RJ, and anything else that you would like us to know. Okay, thank you so much, Riddhi, and thanks for letting me be a part of this because I'm not very old. Okay, I'm just 22 years old, and I have a lot of journey in front of me, and even like a tiny girl or a little girl who are watching me right now, all the girls, I have always been dreaming and drooling that what am I going to do in future? What is my career?
So it feels a pleasure and it feels nice to, guide these girls and talk to them today. It actually feels very nice. So this is RJ Vaishnavi from My FM, and I am situated in Nashik, Maharashtra. So I've heard a lot about Teach for India. My brother was a fellow in Teach for India. In fact, last year we also shot a documentary for Teach for India. So that was one wonderful experience. Um, सो टीच फॉर इंडिया का जो काम है बहुत पहले से ही मुझे बहुत पसंद है since the day I've known what Teach for India is. And today, being an RJ, my job is entertaining people. So I will try my best to not lecture you guys, but to entertain you and to guide you guys. So that's just how RJ Vaishnavi is. Thank you so much for that, Vaishnavi. So our students were very, very excited, and they had a lot of questions that they wanted to ask you. So I will start off by asking some of them, and then I'll give the mic to the students, and then the students can ask you these questions. Before we begin, can I request everybody to please be on mute? Thank you. All right. On that note, something that our students really want to know and was a burning question throughout all the forms that I saw was, how did you decide to become an RJ? What motivated you to do this? Okay. What should we keep the language of no answer? Hindi and English both. ऑल राइट ओके तो जैसे मैंने बताया कि मैं 22 साल की हूँ तो आई गॉट डन विथ माई ग्रेजुएशन व्हेन आई वाज 21 years old और किसी नॉर्मल लड़की के जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगी बट जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो सेकेंड ईयर में मुझे रेडियो प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट था तो जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था कि बहुत सही है और रेडियो जॉकीज को सुनते भी आते थे बचपन से सुन रहे थे और बचपन में स्कूल में मैंने बहुत सारे एलोकेशंस एज इन वक्तृत्व स्पर्धा जो होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था और बचपन से ही एक कीड़ा था कि हम आईने के सामने खड़े रहेंगे और कोई एक्ट्रेस को मिमिक करेंगे उनके जैसे बात करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता था कि हम भी उनके जैसे हो सकते हैं तो मैं बड़ी ही बड़बड़ी थी पहले अभी भी हूँ शायद पता नहीं मुझे तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगी बट जब मैंने ग्रेजुएशन में ये पढ़ा रेडियो प्रोग्रामिंग तब कहीं जाके मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत ही अच्छी है और तुम्हें समझ में आता है कि कहाँ पॉज लेना है क्या करना है तो मैंने 2 साल थिएटर भी किया था तो मुझे थोड़ा नॉलेज था इस चीज के बारे में बट तभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि रेडियो जॉकी बनूंगी तो जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद 2 महीने की छुट्टी थी लंबी और कुछ प्लानिंग किया नहीं था फ्यूचर का कि क्या करना है जॉब करना है मास्टर्स करना है शादी कर लेनी है कुछ कुछ सोचा नहीं था तभी एक रेडियो से फोन आया कि आप इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हो क्या तो मैंने कहा कि मैं तभी एक स्कॉलरशिप क्लासेस में मराठी और इंग्लिश के लेक्चर्स लेने जाती थी टू टीच दोस किड्स तो मैंने कहा कि मैं इंटर्नशिप तो फुल टाइम नहीं कर पाऊंगी बट अगर कुछ पोजीशन आता है तो मुझे बताइए तो मैंने इतना नहीं सोचा था बट ग्रेजुएशन हुआ कॉन्वोकेशन हुआ सर्टिफिकेट की डिग्री हाथ में आई और दूसरे दिन उनका मुझे फोन आया था कह के कि क्या आप रेडियो जॉकी बनने में इंटरेस्टेड है तो मैंने कहा कि भाई मेरा तो कोई ऐसे स्पेसिफिक पढ़ाई तो है नहीं मैंने कभी की नहीं है ऐसे कि रेडियो जॉकी ही बनना है करके बट मैं बात कर सकती हूँ तो मैं आऊंगी तो मैं इंटरव्यू के लिए गई एंड आई गॉट सिलेक्टेड आफ्टर 5 वेरी डिफिकल्ट इंटरव्यूज और मैं एक चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर में मेंशन करना चाहूंगी कि किसी ने मुझे कभी पूछा नहीं कि आपकी डिग्री क्या है या आपने कौन से इसमें पढ़ाई की है कि आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो किसी ने ये पूछा नहीं जो मेरे अंदर का टैलेंट था या जो मेरा कॉन्फिडेंस था वही देख के शायद मेरे सीनियर्स को मेरे कलीग्स को लगा होगा कि ये है भाई रेडियो जॉकी मटेरियल और बाकी तो मैं बताऊं जब आप एक चीज सीखना चालू कर देते हैं काम करना शुरू कर देते हैं यू कीप ऑन लर्निंग यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट पता हैव हमारी टू क्लास थिंक कि मैं रेडियो जॉकी हूँ या नहीं तो मैं अभी भी सीख रही हूँ 1.5 साल हो गया है so that's how I became a radio jockey. Thank you so much for sharing that, Vaishnavi. I think that is truly inspiring to know that um,
बस कॉन्फिडेंस चाहिए एंड वो टैलेंट चाहिए टू एक्चुअली बी वेयर यू आर टुडे एंड हमारे डिग्रीज की इतनी वैल्यू नहीं होती. Girls, I would Right. also like you to pay attention to the fact that Vaishnavi Didi was previously a theater artist, which is something that helped her. So it was not specifically becoming or doing a degree in mass communication or thinking about radio jockey as a whole, but a lot of different skills that helped Didi. Yeah, so it's very important to focus on other things also while we are studying our academics. Thank you so much for sharing that, Vaishnavi. And it's so good to know that you're just 22 years old. That gives me a sigh of relief because I'm also just 21. That makes me very Hmm. happy. So thank you for mentioning that as well. And Vaishnavi, another question that our students really wanted to know was, what was something that motivated you towards this? Like definitely, like you had this opportunity in front of you. आपके पास ये option था, but what was something that told you कि okay ये try करते हैं? Like what was that spark? तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं 21 थी तो आई विल से दैट आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. कभी मेरे घर पे बहुत ऐसे फैंसी हम नहीं थे कि एक्सपेंसिव स्कूल्स है, एक्सपेंसिव कॉलेजेस है. तो ये एक जो रियलाइजेशन होता है कि हमने कहीं हमारे पेरेंट्स के पैसे खर्च किए हैं इस एजुकेशन पे, तो उसका कोई चीज बनाना है हमें. तो ये थॉट हर बार चलता रहता था. तो मास्टर्स तो मेरी इच्छा बहुत थी करने की, बट ये जब आ गया रेडियो जॉकी का, तभी भी मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि वैष्णवी तुम सोच लो, तुम्हें यही करना है क्या, तुम जॉब के लिए तैयार हो? क्योंकि ग्रेजुएशन जब हम कॉलेज में होते हैं तब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है. अभी मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है जो पहले जिंदगी में कभी थे नहीं. सो दे वर क्वेश्चनिंग मी कि तुम कर पाओगी. तो एक मैंने वहां पे चैलेंज ले लिया कि अब तो हम करके दिखाएंगे भैया, इतना पूछ रहे हैं. और दूसरा एक जो मोटिवेशन था कि अगर आगे जाके पढ़ाई करनी है और मास्टर्स की, या फिर घर वालों से अभी पैसे नहीं मांगने हैं रेंट के, खाने के, या फिर कुछ भी हो, तो खुद को सस्टेन करना पड़ेगा, खुद से कुछ ना कुछ तो शुरू करना पड़ेगा. और एक चीज इसमें प्लस पॉइंट ये था कि जो जॉब मुझे पहले ही ऑफर हुआ वो एक मीडिया या फिर आर्ट्स फील्ड में था, क्रिएटिव फील्ड में था, जो मुझे चाहिए था. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो इंजीनियरिंग करते हैं बट देयर हार्ट लाइज इन सिंगिंग और डांसिंग, बट दे कैन नॉट डू इट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन बिटवीन. बट ये एक मेरी जिंदगी में मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि जो पहला ही जॉब मिला वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में मुझे मिल गया. तो आई एम हैप्पी अबाउट इट. सो दिस वाज द वन थिंग दैट मोटिवेटेड मी कि ठीक है, ये एक गिल्ट था कि अभी इतनी जल्दी जॉब मैं ले रही हूँ, आई एम जस्ट 21, हाउ टू सर्वाइव एंड ऑल ऑफ दैट. बट ये एक मोटिवेशन था कि अगर खुद के पैरों पर खड़ा होना है, खुद की आइडेंटिटी बनानी है और जाके प्रूव करना है पेरेंट्स को कि आपने जो पैसे मेरे लिए खर्च किए या आपने जितनी मेहनत ली है बचपन से, तो मैं वो प्रूव करना चाहती थी पेरेंट्स को कि देखो अब मैं, आपने जो बनाया है मिट्टी का एक छोटा सा आइडल, वो अभी बन के एक ह्यूमन बन गया है पूरा, and I am ready to conquer the world. So that was my only motivation कि मॉम डैड का चेहरा था सामने और हम सोच रहे थे कि अब हम जाएंगे और जीत के आएंगे. So that was my only motivation. Thank you so much for sharing that. So like I'm so touched the fact that something that motivated you was definitely your parents and also this need to be independent and to Hmm. actually stand up for yourself. And I feel that that's very important also because us as women, we tend to miss out on that opportunity. So Yes. definitely, like I think these are two things that motivate most of us, I think, in this class Hmm. also. 8th and 9th would also somewhere agree. It's our parents and it's also our need to actually do something in life. Moving on, I would also like to ask you something that again came up a lot was who inspires you? Like definitely it's your parents who motivated you to do this, but who is that inspiration for you? हाँ, देखो मैंने ये सवाल पहले भी पढ़ा था और मैंने आज सुबह ही मम्मी से ये बात डिस्कस की थी. मैंने बोला कि मम्मी मैं टीच फॉर इंडिया के छोटी छोटी लड़कियों के साथ आज इंटरेक्ट करने वाली हूँ और उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं, तो हु इंस्पायर्स मी, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार कोई एक सबका होता है रोल मॉडल कि इसको देख के इसके जैसे बनना है. तो मैं वेरी ऑनेस्टली अगर बताऊं तो हर रोज एक इंस्पिरेशन हमारा बदलता रहता है. एक छोटे कीड़े से लेकर एक बड़े आदमी तक हमारा इंस्पिरेशन हो सकता है. इफ यू सी अ स्पाइडर, इफ यू सी अ एंट, इवन दैट कैन बी योर इंस्पिरेशन व्हेन यू वेक अप. बट अगर बहुत ही
आपको ऐसे पता ही करना है कि मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ, तो कोई साहित्यिक है, कोई लेखक है, गुलजार साहब सबको पता है, जो मेरे बड़े ही आई मीन ही इज माय फेवरेट राइटर। इनफैक्ट उनके एक कविता का मैंने एक जो लफ्ज है वो मेरे हाथ पे भी टैटू करवाया है, इतने वो प्यारे हैं मेरे लिए। तो उनका तो वैसे कोई स्ट्रगल एज सच नहीं था जिंदगी में, बट वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, क्योंकि उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो लिखते हैं वो जो भी लफ्ज है, वो मुझे बड़ा ही इंस्पायर करते हैं कि जिंदगी जो है उससे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि गुलजार साहब की जो कविताएं हैं वो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। तो मेरे हाथ पे भी लिखा हुआ है, हैरान हूं मैं। तो जो कोई नेगेटिव है वो क्या सोचता है कि भाई तुम हैरान क्यों हो, और जो बंदा जिंदगी में पॉजिटिव है वो सोचते हैं कि तुम हैरान हो मतलब तुमको हर चीज में सवाल है। एंड आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सवाल पूछोगे तब आपको जवाब मिलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको एक्सप्लोर करने की और चाह जो है वो बढ़ती जाएगी। सो आई कैन से anything and everything inspires me, but if you want to know in like actual way, then that is गुलजार साहब की जो कविताएं हैं वो मुझे बड़ा ही इंस्पायर करती है। Thank you so much for sharing that. So for girls, for Vaishnavi Didi, something that inspires her is Gulzar Saab. He's a very, very popular, a very known songwriter and a writer. I would like all of you to go to the chat box, and before we move on to the next question, share something that inspires you. Yeah, any role model, any inspiration, that something that inspires you. I would love to see your responses on the chat. Vaishnavi Didi would also love that. Okay, I see Ria has put down Kiran Bedi. Thank you, Ria. Rinki says Shakuntala Devi. Thank you, Rinki. I see Lakshmi sharing my mother, my parents. Thank you so much for being so honest. Waiting for more people to share. My father. Thank you, Riddhi. Kiran Bedi, my family, my Nanaji. Thank you so much. Yeah, so I'm seeing us gathering so much inspiration from the people who are so close to us. Yeah, Correct. so it's definitely our family. Our family motivates us. I also see inspiration being driven from very famous people. Yeah, that's beautiful, girls. Thank you for sharing. And like Vaishnavi Didi shared, asking questions is very, very important. I'm now going to hand over this space to all of you. If you have any questions, raise your hands and I will be asking you to unmute yourself and ask the question to Vaishnavi Didi. All right? Okay, we can start. So if you have any questions, raise your hands. The Zoom raise your hands feature. Anything that you would like to ask Vaishnavi Didi, or even you can even put it down on the chat box. Okay, I see Lakshmi raising her hand. Go ahead, Lakshmi. So, first of all, hi Vaishnavi. So my question is that have you ever experienced discrimination or like gender inequality in your like in your professionalism, and how was your reaction towards it? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन लक्ष्मी, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस जनरेशन में मैं बड़ी हुई हूँ उसमें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत नहीं था, बट मैं कहूंगी कि था, बहुत जगह पे था। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ऑफिस में हम 20 लोग हैं, 20 में से सिर्फ हम 3 लड़कियां हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन आज तक मैंने ऑफिस में तो कहीं फेस नहीं किया है, बट बाहर मैंने बहुत फेस किया है, कॉलेज में मैंने बहुत फेस किया है, जहाँ पे लोग बिलीव नहीं करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। तो हमें एक फोटोग्राफी का सब्जेक्ट होता था हमारे कोर्स में, तो मैं बड़ी ही डरती थी फोटोग्राफी से, और मुझे ऐसा लगता था कि ये कैमरा हमसे ना हो पाएगा। और कई लोग थे हमारे, एक प्रोफेसर भी थे जिन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, कह के कि लड़कियां तो वैसे भी फोटोग्राफी करती नहीं है, और वो सुन के कहीं थोड़ा सा बुरा लग गया था, बट मैंने उस टाइम पे रिएक्ट कुछ नहीं किया था। मैं आपको बताऊं, जब हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देखने के बाद लोग ज्यादा हम पे टिप्पणियां देते हैं, दे बिकम मोर अग्रेसिव कि लुक शी इज रिएक्टिंग व्हिच मींस शी इज हर्ट। तो अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो रिएक्ट ना करे, हम हमारा काम करके दिखाए। हमारा जो काम है वो हमारी आवाज होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ऑफेंसिव नहीं लगना चाहिए। हमें लगता है ऑफेंसिव, आई अग्री,
बट व्हेन इट कम्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लोगों को काम करके दिखाओ, आपका काम जो है वो उसकी आवाज गूंजनी चाहिए। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना तो नहीं हुआ है, और टचवुड फ्यूचर में कभी भी ना हो मेरे साथ, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, लक्ष्मी। Thank you so much for the question, Lakshmi. And absolutely agree with what Vaishnavi, with what you shared, Vaishnavi. We need to show it in our actions. We need to like tell the world that we're more than enough. Yeah. Thank you so much Exactly. for sharing that. I also see that there's a chat. There's a question on the chat box which says, "Which course did you do in college?" या सो आई हैव स्टडीड मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें मुझे पूरा रेडियो का नहीं था, एक सब्जेक्ट रेडियो प्रोग्रामिंग का था इसमें। Okay. And from which college? आई हैव डन माय मीडिया एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे। Okay, okay. All right. Thank you. I see Ragini raising her hand and Preet as well. So we'll take the first question from Ragini and then Preet. Go ahead, Ragini. Vaishnavi Didi, how you entertain people? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, रागिनी? She's asking, how do you entertain people? Oh, okay. That is very sweet, Ragini. I try my 100% to entertain people. अभी एंटरटेनमेंट में लोग कहते हैं कि आप बस हंसाते हो क्या, तो ऐसे नहीं है। जब कोई चीज, देखो ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीजें हैं जो दिन भर में हमसे मिस आउट हो जाती है। हम एक एक न्यूज तो पढ़ते हैं नहीं, या फिर हम एक दिन में दो दो किताबें तो पढ़ते हैं नहीं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि लोगों को कुछ गिने चुने चीजें, जिसको हम ट्रिविया भी कह सकते हैं, वो लोगों तक पहुंचाओ। कि कोई गाना सुना रही हूँ तो गाने के पीछे की जो स्टोरी है, या कोई प्रैंक हुआ था एक्टर्स के साथ, या कुछ ऐसे किस्से होते हैं, वो सुना के मैं एंटरटेन करना बड़ा पसंद करती हूँ। बिकॉज मुझे खुद को गाने बड़े अच्छे लगते हैं, गाने और मूवीज। और बुक्स मैं पढ़ती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि बुक्स में जो जो अच्छी चीज मुझे लगी है, उससे मैं लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ और साथ ही कुछ नॉलेज भी दे पाऊँ। तो मैं थोड़ा इजी रखती हूँ एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मुझे बड़े ही जोक्स आते हैं। मेरा जोक और सार्केज्म लेवल इतना अच्छा नहीं है। तो मेरा एंटरटेनमेंट का सोर्स यही है कि मैं नॉलेज थोड़ा सा फन वे में पोर्ट्रे करना ट्राई करती हूँ। Thank you, Vaishnavi. Vaishnavi, any funny incident or fact जो आप हमारे साथ share करना चाहेंगे? Anything that recently happened? तो ये जो रेडियो का जो प्रोग्रामिंग होता है, मैं आप सबको थोड़ा सा एक बार दिखा भी देती हूँ कि मैं अभी स्टूडियो में बैठी हूँ। तो आप Wow. देखोगे ये इतने सारे बटन जो दिख रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो और जब हम लाइव शोज करते हैं, तो हमको बहुत स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है कि क्या बात करनी है, कितने सेकंड्स के लिए बात करनी है। तो जब मैंने शुरुआत की थी ये जॉब की, तो मुझे सपने आते थे कि मैं कहीं बाहर हूँ स्टूडियो के, और शो चल रहा है और मैं भूल गई बात करना जाके। और ये मैं कह रही हूँ, अभी तक मुझे ये सपने आते हैं 1.5 साल होने के बाद भी, कि मैं भूल गई हूँ कुछ करना, या मैं ऑन एयर हूँ और मैंने कुछ गलत बोल दिया है, या ऑन एयर में हूँ और मैंने किसी का फोन उठा लिया, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, पूरा नासिक मेरा फोन कॉल सुन रहा है। ये सपने मुझे आते हैं। तो ये मुझे बहुत ही फनी लगता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। वंस अगेन टचवुड कभी हो भी ना, तो ये एक फनी चीज है। आई थिंक ये हर जॉब में होता है। ये मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि ओ मैंने वर्कशीट नहीं भेजी, ओ मैंने बच्चे का रिप्लाई नहीं किया। मेरे साथ भी होता है। तो आई थिंक ये कॉमन है अक्रॉस ऑल फील्ड्स। अनदर क्वेश्चन दैट आई सी ऑन द चैट एंड देन आई विल आस्क प्रीत टू गो अहेड इज व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम? मेरा चाइल्डहुड ड्रीम बड़ा ही कॉमन था। तो पहले जैसे मैं स्कूल जाने लगी, तो मेरा ड्रीम था कि मुझे टीचर बनना है। कुछ भी करके एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े रह के बच्चों को सिखाना है। इमेजिनरी बच्चे मैं वहां पे तैयार कर देती थी, और उनसे बातचीत करके घर पे चुन्नी वुन्नी का थोड़ा सा जुगाड़ करके साड़ी वाड़ी बना लेती थी, और बाल वाल चोटी में कर लेती थी। तो ये मेरा सपना था। और उसी के साथ दूसरा सपना था कि एक्टिंग करना है, क्योंकि जो हम पर्दे पे देखते हैं वो बड़ा ही ग्लैमरस लगता है। तो ये दोनों चीजें मुझे बचपन से बहुत अट्रैक्ट करती है, कि टीचिंग एंड एक्टिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड अग्री। हम सब ने बचपन में टीचर टीचर तो खेला ही है। तो डेफिनेटली ओवर टू यू प्रीत।
Preet or Khushi? I think, oh, Preet is the musician's name, I think. No. They're both here. Preet and Khushi from 8th, they are both here. Okay, go They're ahead, joining Preet. the class together. All Yeah. right, Preet and Khushi, go ahead. So hello, they have a very very good evening to all of you. So here is Preeta and Khushi. So I want to ask question that when you speak to any person, like you don't feel like hitches like to speak from any person. अ, मैंने मुझे ये डर लगता था पहले कि मैं बात कैसे करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ 22 साल की हूँ। तो ये डर कॉन्स्टेंटली रहता था कि जब कोई बड़े-बड़े लोग आते हैं, एक्टर्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं कैसे उनके सामने बात करूँ? मुझे ये बड़ा ही सवाल आता था कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैं शब्द ही भूल गई, तो क्या होगा? बट मैंने जैसे इनिशियली शुरुआती में कहा था कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप कुछ भी करो, अगर गलती भी कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंटली करो। वो गलती का गिल्ट आपको नहीं आना चाहिए। हाँ, गलती आप भले ही सुधारो, बट वो गलती का गिल्ट आप पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि गलती ये तो इंसान का नॉर्मल बिहेवियर है, गलती तो होती है सबसे, सो दैट्स ओके। और मैं बातों के बारे में यही कहूंगी कि जितना आप घर वालों से बात करोगे, जितना दोस्तों से बात करोगे, टीचर्स से बात करोगे, तो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आपके सामने कोई भी रैंडमली आके खड़ा रहेगा ना, तो उसके आंखों में देख के बात करिए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कोई भी हो आजू बाजू, आपका कॉन्फिडेंस अचानक से आता है। तो ऐसे मैंने तो ऐसे कुछ अलग कुछ किया नहीं था प्रैक्टिस इसके लिए, बट एक ही चीज है कि कॉन्वर्जेशन बढ़ाते जाओ, इंटरेक्ट करते जाओ और आंखों में देखो सामने वाले की, बस। I think that is my biggest learning from this space already कि बस confident रहना है, गलती करो, mistakes करो, but बस confident रहो. I think this is something Yeah. that all of us need to like follow, not just the students, but everybody. Yeah, like in 8th A, what is our first student class? Somebody from 8th A. Please. Ete, Anvi Didi is putting you on a pedestal. What is your हाँ, first अब rule? first rule नहीं भूल सकते. बताओ. Oh, I see all hands are raised. Yes, Ria, Okay. go ahead, Ria. The mistakes are good. We should Yes. learn Are they from good? our mistakes. We should learn from Yeah. our mistakes. Brilliant. On that note, I would ask Ritika to come off mute and share her question. Hello, Dee. How are you? Hope you're good. And Dee, my question is that what is your most embarrassing moment till now? Wow, that's a very good question, Ritika. I love it. Thank you so much for this question, Ritika. वैसे तो मेरे बहुत embarrassing moments दिन भर में होते रहते हैं, because मैं बहुत ही clumsy हूँ और मैं कोई काम करने जाती हूँ तो मेरे से धक्का लग जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, खुद ही मैं मुझे लग जाएगा। तो क्या होता है कि हम जब इंटरव्यूज लेते हैं तो हम बहुत फोकस्ड रहने की कोशिश करते हैं, और जब बड़े पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज आते हैं तो तभी तो हम बहुत ही सोच कर और रिसर्च करके बैठते हैं सामने। तो आई थिंक ये हर रेडियो जॉकी का एक डर होगा, बट ये मेरे लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग था। एक पॉलिटिशियन आए थे हमारे यहाँ पे, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और जो हम जिस चीज को फंबल कहते हैं कि आपको ये शब्द बोलना है बट तत्त हो जाता है, तो उनके सामने मतलब बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू हो रहा था, उनके सवाल उनके जवाब अच्छे से आ रहे थे सब। आई वाज वेरी हैप्पी। आई थिंक एक्साइटमेंट की वजह से मेरा वो तत्त हो गया, और उन्होंने कुछ कहा नहीं ऑब्वियसली, और हम सब हो गया, वो गए। फिर 2 दिन जो मैं सोच रही थी वो चीज के बारे में कि जो मैंने गलती की है या जो भी हो गया है, तो ये तत्व बड़ा ही होता है। और जब भी ये होता है इट बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि आई एम अ रेडियो पर्सनल, मेरी आवाज मेरा पावर है, तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बट कुछ महीनों बाद मैंने ये खुद को समझा दिया कि गलती होने वाली है, और इसको हम गलती भी नहीं कह सकते, हम इसको ह्यूमन टेंडेंसी कह सकते हैं कि हम बैक टू बैक जब बात करते हैं तो एक टाइम के बाद हमारी सांस कहती है कि भाई रुको, थोड़ा हमको सांस लेने दो। तो हमारी जीभ भी बोल देती है कि अभी मैं थोड़ी हैवी हो गई हूँ, मुझे पानी की जरूरत है, ड्राई पड़ गई हूँ, तो तभी वो तत्व हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता था। I think as teachers, Anvi and I would also agree. कभी कभी क्लास में भी ऐसे like आज मेरी पहली क्लास थी and आज भी मेरे साथ ये हुआ था। and वैसे जब हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे होते हैं, कितनी बार ऐसे होता है कि हमको खुद ही एक ब्रेक चाहिए होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, आफ्टर अ पॉइंट हम वो भूल जाते हैं। There was also a very nice question on the chat that I would love to ask you. It says, Yashita has asked this question. It says that your job is to entertain people, but what do you do to entertain yourself? What do you do to keep yourself busy?
मुझे 1.5 साल में किसी ने ये सवाल पूछा नहीं है, बट यशिता थैंक यू सो मच, आज आपने ये सवाल पूछा। वैसे तो मैं पहले बहुत बड़बड़ी हुआ करती थी, बट नाउ माय जॉब इज टॉकिंग, सो मैं इतनी घर पे बात नहीं करती हूँ, एंड माय मदर कीप्स ऑन कंप्लेनिंग दैट वैष्णवी डज नॉट स्पीक टू अस एनीमोर, व्हिच इज नॉट ट्रू, बट ये एक है। तो रेडियो में काम करती हूँ, तो दिन भर मेरे सर के ऊपर एक रेडियो लगा हुआ है, तो वो चालू रहता है कि मुझे पता चलता है कि क्या चल रहा है। और मुझे गाने जो है वो लर्न हो गए हैं अभी, क्योंकि वो पूरा टाइम चलता रहता है। तो मैं खुद को एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे गाने सुनती हूँ, बट मेरे गानों का जो चॉइस है वो बड़ा ही अलग है। मैं 90s और 80s के ही गाने सुनती हूँ, तो मेरा एक चॉइस टेस्ट अलग है। और दूसरा जो है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे आजकल के जनरेशन के जैसा मुझे अच्छा बड़ा लगता है कि वो बाहर जाते हैं, दोस्त मिलते हैं, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है हर रोज बाहर जाना। मुझे लोगों से बात करने में थोड़ा सा ये हो जाता है कि दिन भर तो मैंने बात की है, अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, तो मैं घर पे बैठती हूँ और मन करे उतने गाने सुनती हूँ। और किताबें, जो किताब, मैं तो बहुत बार ऐसे भी करती हूँ कि ये किताब अभी 20 पन्नों में मुझे बोर हो रहा है तो मैं दूसरी किताब उठा लूँ, ये भी मैंने किया है। वो एकदम आई एम गिल्टी अबाउट दैट कि ये मैंने किया है। और मूवीज देखने का भी ट्राई मैं करती हूँ जैसे टाइम मिलता है, तो मैं खुद को एंटरटेन करने के लिए बड़े ही मिनिमलिस्टिक चीजें करती हूँ। बेसिक इंसान जो करेगा, गाने सुनती हूँ, मूवीज देखती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ। Thank you for sharing that. I Minakshi has asked a question on the chat. She's asking, when was the last time? When did you feel the most proud of yourself? आज सुबह जब मैंने मम्मी को ये चीज बताई कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाली हूँ, तो मम्मी को बहुत प्राउड फीलिंग हो रही थी, क्योंकि मेरे भैया जो है वो फेलो थे TFI में, और उन्होंने बड़ी सारी मेमोरीज शेयर की है। तो मुझे बहुत हमें एक होता है कि जो मेरा बड़ा भाई कर रहा है वो मुझे भी करना है। तो मुझे ये एक सपना था कि मैं भी TFI में कभी फेलो बनूं, बट वो हो नहीं पाया। तो एक प्राउड वाली फीलिंग मम्मी के चेहरे पे आ गई थी कि इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी कि दूसरी छोटी लड़कियों से बात करने वाली है। और तभी मुझे प्राउड, तभी रियलाइज हुआ कि आज अगर एक भी लड़की मेरे बातों से इंस्पायर हो जाए या कुछ सीखे, then that will be the best thing. That's why I was proud of myself today morning itself. Thank you for sharing that, Vaishnavi. Payal, go ahead. I see you raising your hand. Yes, hi Vaishnavi Di. Di, I want to ask that जो आप जिनसे इंस्पायर हुए हो लाइफ में, क्या आपने उन्हें, मतलब क्या आपका ऐसा ड्रीम था कि मैं काश मैं उन्हें ग्रेटिट्यूड दे पाती, उन्हें थैंक यू बोल पाती किसी तरह से, तो ऐसा कब हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि गुलजार साहब की जो कविताएं हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। तो ये मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि जिंदगी में कभी तो जाके मैं उनके साथ कुछ ना कुछ तो काम कर पाऊं। अगर उनके सेट पे, उनके कोई भी सेट पे वो काम कर रहे हो, तो वहां पे अगर मुझे स्पॉट बॉय का भी काम मिल जाए या फिर चाय वाले का भी काम मिल जाए, तो मैं उनका चेहरा देख पाऊं और उन्हें बस थैंक यू कह पाऊं। ये मेरा सपना रहा है, अभी भी ये मेरा सपना है। बट मैं रियलिटी को लेकर चल रही हूँ कि इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रही हूँ ये चीज को। तो मैंने सोचा, बड़ा बचपन से सोचा था कि उनसे मिलना है कुछ भी करके। अभी अभी जो आपने सवाल पूछा है, इसके बाद मेरा वो इंस्पिरेशन और जाग उठा है कि मैं जाके उनको कम्युनिकेट करने का ट्राई करूँ, कांटेक्ट करने का ट्राई करूँ। तो अभी तक तो मैं मेरे इंस्पिरेशन से मिली नहीं हूँ, बट आज जो आपने, मैं कहूंगी कि मैंने चैलेंज की से ले लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द उन्हें कांटेक्ट करने का ट्राई करूँ और आप लोगों को भी बताओ जब मैं उनसे कांटेक्ट करूँ। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। Shreya, go ahead. Shreya, I see, Bache, you are raising your hand. Go ahead. Yes. Hello Vaishnavi ji. So my question is that what are the different challenges do you face in your profession? ओके, सो बहुत ही अगर टेक्निकली बात करने जाए तो रेडियो जॉकी इज ऑल अबाउट कंटेंट। हम क्या बात करते हैं, ये जो कंटेंट हमें तैयार करना पड़ता है रोज। शो के पहले हमें बैठ के उस पर रिसर्च करना पड़ता है। वी हैव टू सिट एंड कम्युनिकेट विद पीपल कि क्या आपको लगता है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये बहुत ही
चैलेंजिंग बात है। लोगों को लगता है कि हम रेडियो पे है, हम कितना अच्छा बात करते हैं, बट वो बात करने के पीछे एक बड़ा ही चैलेंज ये होता है कि कंटेंट कहाँ से ढूंढे। फिर अगर मैंने ये बात किसी को बता दी, तो आज अभिषेक बच्चन का बर्थडे है, तो ये लोगों को पता है, बट मैं उसको और इंटरेस्टिंग करके कैसे बताऊं? लोगों को क्यों मेरी बात सुननी पड़ेगी? व्हाई वुड दे लाइक टू लिसन टू मी? तो ये प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम जाता है। ये एक बड़ा ही चैलेंज है रेडियो जॉकी का। और दूसरा मैं बोलूंगी कि ये बाकियों का तो पता नहीं, बट मेरा तो बड़ा ही चैलेंज है कि 11 से 7 जो मैं ऑफिस करती हूँ तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो ये एक मेरा चैलेंज है, बट मैं ओवरकम करने का ट्राई कर रही हूँ। तो कंटेंट एक है और मेरी नींद जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये एक मेरा चैलेंज है। ओके वैष्णवी, तो जैसे कई बार, जैसे ड्यूरिंग कोविड स्पेशली, थिंग्स मस्ट हैव लुक्ड वेरी डिफरेंट फॉर यू, कि मतलब आपको पता नहीं है कि आप कब ऑफिस जा पाओगे, क्या वो सेफ है कि नहीं। तो कोविड के टाइम पर आपके लिए कैसे चल रहा था सब? तो कोविड के टाइम पे पहले 2 महीने तो बहुत ही डिफिकल्ट थे। मार्च, अप्रैल और मई भी आई कैन से, क्योंकि हमें जो यहाँ पे आदत है स्टूडियो में बैठ के कि सिर्फ माइक ऑन किया, बात किया, हो गया। वहां पे घर पे हम क्या कर रहे थे कि फोन पे रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको एडिट करो लैपटॉप में लेके, तो ये इतनी आदत नहीं थी। तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए, नहीं बाकी सारे जो रेडियो जॉकीज है थ्रू आउट जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम चुना था, तो हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। और everybody was trying to take a hold of some celebrity or to talk to somebody, कि किसी अगर सिटी के प्रोफेशनल से ही बात कर लो कि हमारे सीपी सर है, कोई पुलिस है, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि लोगों की परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। हम क्या बात करें, हम इंटरव्यू करें तो हम उनको किस मुंह से सवाल पूछे कि भाई आप ठीक हो? नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। तो ये एक बड़ा ही प्रॉब्लम था। और ऑब्वियसली एक रेडियो जॉकी के लिए हम ऑफिस में रहते हैं तो हम पूरे बबली रहते हैं, हम सबसे बात करते हैं। घर पे रहना, घर पे रह के काम करना, दो एक प्लस पॉइंट था कि मॉम डैड साथ में थे पूरा दिन, बट फिर भी बहुत मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता था ये चीज कि हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, और लोग हमें सुन रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि 70% लोग हमें कार में सुनते हैं, जब कार से बाहर ही नहीं जाना है तो हमारी बातें सुन कौन रहा है? ये एक बड़ा ही टेंशन आ गया था कोविड के टाइम में। बट थोड़े फीडबैक्स मिले जहाँ पे लोग कह रहे थे कि हम फोन पे भी सुन रहे थे आपको, क्योंकि हमको आदत सी हो गई थी कि शाम को 7 बजे रेडियो लगाओ तो आरजे वैष्णवी की आवाज आएगी। तो थोड़ा अच्छा फीडबैक भी मिला है, बट थोड़ा मेंटली भी थोड़ा सा परेशानी हुई थी। ऑफ कोर्स। एंड स्पेशली बिकॉज आपकी जॉब ऐसी है कि आपको खुश रहकर सबको बताना है कि आज ये चल रहा है और आज मैं आपके लिए ये गाना लगाने वाली हूँ, तो उस अपने आप को उस मूड में भी लेकर आना मस्ट बी वेरी बिल्कुल। डिफिकल्ट, स्पेशली जी। ड्यूरिंग कोविड। आई सी यस। आंचल रेजिंग हर हैंड। गो अहेड आंचल, गो अहेड आंचल। Hello Vaishnavi. I have a question. Do you agree with it that people nowadays, most of the people don't listen to radios as they used to do in our old days? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सवाल है जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मेरे फैमिली में भी पूछते हैं कि आजकल तो लोग रेडियो सुनते हैं नहीं, क्योंकि कार में सबके ऑक्स केबल रहता है तो कार में लोग गाने बजाते हैं, या फिर रेडियो पे बहुत सारी एड्स चलती है। तो बुरा तो बड़ा ही लगता था, इनिशियल स्टेज में बहुत बुरा लगता था ये सुन के कि लोग कहते थे कि हमने नहीं सुना यार आपको। या फिर कई बार क्या होता है कि लोग हमारे स्टेशन मिक्स कर देते हैं कि तो आप मिर्ची में काम करते हो, नहीं अच्छा आप रेडियो सिटी में काम करे, तो ये एक बुरा लगता था। बट कुछ फीडबैक्स जो ऑनेस्ट मुझे मिले, जिसमें लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए, मेरे ऑफिस में कई लोग मुझे मिलने आए स्टूडियो पे, तो उस टाइम पे कहीं अच्छा लगा कि देर इज अ सेट ऑफ पीपल, देर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु इज स्टिल लिसनिंग टू मी। और मैं क्लास एज इन किसी को ऊंच नीच से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं बोलूंगी एक ग्रुप तैयार हो गया है लोगों का। यानी कि मेरे फैमिली मेंबर्स है, कोई मेरी मम्मी नहीं सुनती है मुझे रोज, बट मेरी जो मामी है वो मेरे सारे शो सुनती है क्योंकि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मेरी नानी है वो सारे शो सुनती है, मेरे पापा जो है शाम को कार में मेरे शो सुनते हैं, मेरे कई दोस्त है जो सुनते हैं, मेरे कई दोस्त है जो नहीं भी सुनते हैं। तो एक एक ग्रुप है लोगों का जिन्हें एक्चुअली इंटरेस्ट है जानने में, और सिर्फ ना ही मेरा शो बट सब बाकी जो आरजेस है उनका भी शो सुनते हैं।
तो इनिशियली बहुत ही बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि है रेडियो तो कोई सुनता ही नहीं आजकल, बट ये थोड़ा सा गलत है। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में उनको अच्छा नहीं लगता है, जिनको बोरियत का काम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, वो लोग रेडियो सुनते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक न्यूज़पेपर का ही जरिया है कह सकते हैं। तो लोग है, कई लोग जो हमें सुनते हैं, गानों के लिए क्यों ना हो लोग हमें सुनते हैं, तो थोड़ा सा कहीं मुझे उस चीज से आई फील हैप्पी अबाउट दैट। वैष्णवी, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपको सबसे अच्छा लगता है बजाना? देखो, मैं तो रोज ही गाने बजाती हूँ अलग अलग, बट मैं अभी जो रिसेंट जो चल रहे हैं, नेहा कक्कर के नए गाने आए हैं, ख्याल रखा कर, नेहू द्या व्या। मैं कभी नेहा कक्कर के गाने सुने नहीं थे, मुझे कभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बट अभी जो मैं रोज प्ले कर रही हूँ, ख्याल रखा कर और नेहू द्या व्या, अच्छे लग रहे हैं वो गाने। वो थोड़े हुक हो गए हैं, और मेरा टाइप तो है नहीं ये गानों का, मेरे टेस्ट मैंने आपको बताई 90s और 80s के सॉन्ग्स है, बट सामने अगर ये गाने हो और मैं अगर वो सुन रही हूँ, खुद प्ले कर रही हूँ, तो वो मेरा फिट हो गया है अभी। Thank you so much for sharing that. I think Nehuda Vyas is ninth A ka also favorite and 8th A also, I'm sure, because I see a lot of our students listening to this song. So I think it is the new song. Rinki, go ahead. I see you raising your hand. Hello, Dee. Dee, what are your hobbies? वैसे तो किताब पढ़ना मेरी हॉबी है, दैट इज वन ऑफ माय हॉबीज, एंड अदर इज लिसनिंग टू म्यूजिक, क्योंकि रेडियो तो सिर पे ही चलता रहता है। बट मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे हॉबीज में और चीजें ऐड हो, जैसे कि लिखना। लिखना जो है हमने छोड़ दिया है। मुझे याद नहीं कि 12वीं की परीक्षा के बाद मैंने कभी ऐसे मन भर के लिखा हो। तो ये एक हॉबी है जो बहुत महीनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं अडेप्ट करूँ, कि लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब आपके लिए तो लिखना इज अ डेली जॉब, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो। तो मुझे लगता है कि ये हॉबी जो है, जो स्कूल में मैंने बहुत अच्छे से, मेरी हैंडराइटिंग काफी खराब थी, मैंने कभी इतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं हैंडराइटिंग पे। तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि तुम अपनी हैंडराइटिंग सुधारो, तुम्हारे 5-6 मार्क्स वही बढ़ जाएंगे। बट वो तो कभी हुआ नहीं। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद सही में अगर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करूँ, तो शायद मेरी हैंडराइटिंग ठीक हो जाए। पता नहीं फ्यूचर में कहाँ लग सकती है, नहीं भी लग सकती, कुछ कह नहीं सकते। तो आई थिंक अभी तो रीडिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक ये मेरी हॉबी है, बट लिखना मैं जल्द ही ये एक हॉबी बनाना चाहती हूँ। And Vaishnavi, this is a question from me. If not radio jockey, what would your alternate career look like? अगर रेडियो जॉकी नहीं होता तो क्या? जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी, तब मैंने जैसे कहा कि फोटोग्राफी का बहुत ही डर था। मैं गई थी जर्नलिज्म के हिसाब से, मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया था कि जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिज्म करना है। बट वो चेंज हो गया। थर्ड ईयर में आके मैंने खुद की डॉक्यूमेंट्री बना ली थी इस चीज के लिए। सो तब से मुझे कैमरास का बड़ा ही शौक चढ़ गया था, कह सकती हूँ मैं। तो अगर मैं रेडियो जॉकी नहीं होती, तो मैं अभी सिनेमेटोग्राफी का शिक्षण जो है वो ले रही होती थी। टचवुड वो कभी फ्यूचर में भी मतलब होना चाहिए, आई एम होपिंग फॉर दैट। तो सिनेमेटोग्राफी जो है, कैमरा के पीछे से काम करना, वो मुझे अच्छा लगता है। I have also done cinematography in school, school and as well as college. So I completely understand. वो बस camera set करना, वो frame set करना. It's a Exactly. different feeling altogether. Yes, yes. Also, one more question that our students wanted to know was, how did you feel after your first ever session that you took? Like, how did you, like, what was that moment like? तो मैंने ऑन एयर जाने से पहले 1 महीना मैंने ट्रेनिंग लिया था, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें सीख रही थी। और वो जो एक दिन था मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। वो रात मैं सोई नहीं थी, उसके पहले रात, क्योंकि मैं डर गई थी। मैं एक्साइटमेंट नहीं, डर की वजह से हो रहा था कि पहली जॉब है, अगर मैंने पहले ही दिन कोई बूफ अप कर दिया, मैसअप कर दिया, तो भाई मेरी जॉब तो चली जाएगी। वैसे कुछ था नहीं, बट जब वो सेशन खत्म हुआ, तो मैं कहूंगी कि मेरा एक जो प्रेशर था, यहाँ पे बैठा हुआ कोई लग रहा था, वो सबसे पहले कोई तो भी उतर गया है छाती से, ऐसे फील हो रहा था। और दूसरी चीज ये रियलाइज हुई शो खत्म होने के बाद, कि आज पूरे नासिक में thousands of people have heard us talk. I mean, that was the moment which actually made me feel कि ये बहुत स्पेशल है। सब लोग एक साथ मुझे सुन पा रहे हैं, एंड नहीं सुनते हैं लोग एक दूसरे की बातें, बट सब लोग मिलके मुझे सुन रहे थे, तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी।
course. Riddhi, even I have a Yes. couple of questions which I Go thought ahead. would be Go interesting. ahead, Achal. Yeah. So, you mentioned that thousands of people hear your voice on a daily basis. How does it feel that you have this platform where you can speak your mind and, really, really, really raise attention towards certain things that you notice or certain things in a fun way, in an entertaining way, but you can still show some light on certain issues that you hold close to your heart? What does it mean to have a voice? And the second one, I put it on the chat box as well. What does it actually feel like to be a strong, independent working woman? I know that was one of your biggest motivations, to be able to earn, to be able to give back to your family. But what did it mean when you saw on your phone, when the amount got credited and you were officially a working woman, independent, all by yourself in the city? So what did that mean? So two questions. Yeah, okay. So the first question is, I definitely feel very responsible when I talk on the radio. So entertainment hai, gaane sunana hai, there is this fun element and everything, but there are some situations that happen in city where I have to raise my voice. So at that point of time, I feel very responsible क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं जरिया बन सकती हूँ कि उनको जो कहना है वो मेरे थ्रू मैं कहूंगी to make people aware. So I feel very responsible person at that point of time कि बहुत ही अच्छा मीडियम मिला है जो, और मैं तो कहूंगी कि मेरी जो जनरेशन है, वी आर वेरी एक्टिव, वी आर वेरी हाइपर एंड वी वांट टू टॉक अ लॉट, कि हमें कोई भी मुद्दा हो हमें उस पे बात करनी होती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो अंदर होता है वो हम बाहर निकाल पाते हैं। सो आई थिंक it's a very difficult job actually, very honestly speaking, कि you have to talk to people, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, आप पॉलिटिकल इशू के बारे में बात कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। साथ ही बहुत अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से मैं बात कर सकती हूँ। और आपका सेकंड क्वेश्चन जो था कि मैंने बचपन से ही मेरी मॉम को देखा है, शी इज बीन वर्किंग, बट मैंने स्कूल में या फिर मेरे कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में एक चीज देखी है जहाँ पे लड़कियां एक दूसरे से बड़ी जेलस फील करती थी कि इसका तो इतना अच्छा है, मेरा तो ऐसे है, या फिर इससे बात नहीं करेंगे। ये एक चीज मुझे बहुत ही, आई हैव बीन बुलीड अ लॉट, मैं स्किनी हूँ इसलिए मुझे बुली किया गया है, आई हैव बीन बॉडी शेम्ड। तो ये एक ऐसे, जब मेरा पहला सैलरी क्रेडिट हुआ था तब मुझे ये फीलिंग आया था कि आज मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, और जिन लोगों से मैं बात करूंगी, जिन लोगों से कम्युनिकेट करूंगी, उन्हें मैं ये शिक्षा दूंगी कि आप किसी को बॉडी शेम ना करें, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, स्पेशली वुमेन, बिकॉज इन आवर कंट्री व्हाट वुमेन नीड इज सपोर्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। आज यहाँ की स्त्रियों की परिस्थिति एक साइड देखा जाए तो बहुत ही अच्छी प्रगति हो रही है, there's lovely progress with women happening in our country, but then there's other side जहाँ पे females are facing a lot of trouble। तो ये हो रहा था कि मैं, सैलरी ज्यादा मैटर नहीं कर रही थी, ये मैटर कर रहा था कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो और आप आपके आने वाले जनरेशन को भी इंडिपेंडेंट करने वाले हो, आपके आजू बाजू जो लड़कियां हैं उन्हें सपोर्ट करने वाले हो। तो ये एक चीज थी जो मुझे बहुत खुद से अच्छी लग रही थी जिस दिन मुझे ऐसे ऑफिशियली टैग मिल गया था कि आप इस कंपनी में एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय की जैसे काम कर रहे हो। I thank you so much for that, Vaishnavi, and I completely agree. अगर हम आज independent feel कर रहे हैं, वो हम अपने लिए अकेले नहीं कर रहे, but we're doing it for the women, for the girls who are around us. Yeah, so we Absolutely. have to empower everybody who comes our way, and we don't have to leave anybody stranded. Beautiful. Exactly. Thank you so much for that. Exactly. The number of times I hear, so now you're married, so are you not going to move forward with your career? Oh, when are you starting a family? And so now you must be leaving your job. So the number of times I get asked that question in various interviews, it's not even funny. So it really means a lot to be independent, to be working. And it's, yeah, so it's really great to see you also do that. That's amazing. And also making sure that everybody around us is with us in that movement forward. I see that there are some more questions on the chat box, but girls, I'm going to pause the questions here. I will definitely ask Vaishnavi Didi to answer these questions for us later. What we're going to do now is, in these last 5 minutes, I would want all of you to
Go to the chat box, take a minute, then go to the chat box and write down your takeaways from today's session. What have you learned from today's session after interacting with Vaishnavi Didi? It can be about Radio Jockey, it can be about something with your own life, anything at all, yeah? Go to the chat box and write down your 3 takeaways from today's session. And while you're all doing that, there's this very nice question. I would love to ask you that, Vaishnavi. Yeah. That what values should we operate with as students, or what mantra should we follow while the students are writing their takeaways? Yeah. So यही जो मैंने पहले कहा था, support each other. अब मैं थोड़ा सा biased होके नहीं बात करूंगी, मैं ऐसे बात करूंगी कि हम सबने हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला इंसान क्या फेस कर रहा है, what is the person going through. So be it a male, be it a female, be it your parents, be it your siblings, anybody for that matter, just support them. अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए, उनकी बात जो है वो सुन लीजिए. आप कभी भी, मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत बात करिए, बट ये एक चीज ध्यान में रखिए, कोई अगर सामने वाला बात कर रहा है तो लिसन टू इट, बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. रोज जितना नॉलेज ले सकते हो उतना नॉलेज लेते रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बदलाव नहीं ला पाएंगे, और अगर चेंज लाना है तो वो हमसे शुरू होना है. तो चैरिटी बिगिंस एट होम. Start supporting each other, and your teachers are doing a lovely job. I absolutely love all the TFI fellows. तो आप भी उनके जैसा ही उनको देख के उनसे चीजें सीखिए कि वो कैसे बात करते हैं, वो आपके जो कठिनाइयां है, प्रॉब्लम्स है, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, आपको कैसे सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाल के देते हैं. तो ये सब चीजें देख देख के, सुन के आप भी खुद में इनहेरिट कर लीजिए. और बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिंदगी में कोई भी हो सामने, उसे सपोर्ट कीजिए, ना कि पहले ही जज कीजिए. Thank you. Before we close out, Vaishnavi, would you like to say goodbye to us or hello to us in your radio jockey, proud radio jockey voice? So we meet RJ Vaishnavi. Yes, I would love to do it. So, हेलो हाय 104.2 माय एफएम, आपने ट्यून इन किया है, आरजे वैष्णवी है आपके साथ. अ वेरी हैप्पी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी. सो आज मैंने बहुत ही बढ़िया सेशन अटेंड किया, जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों के साथ मैंने बातचीत की, गुफ्तगू की, बहुत मजा किया. उनके फेलोज के साथ, यानी कि जो उनके टीचर्स हैं, उनके साथ भी बात की. और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उन्हें कुछ सिखाऊंगी, बट उनके सवाल इतने कमाल के थे कि मैं एक टेक अवे लेके जा रही हूँ घर जाते जाते. एक बैग भर गया है मेरा. जो सवाल मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि अगला स्टेप लेना है, जिंदगी में रुकना नहीं है. और उनकी टीचर्स को देख के तो बड़ा ही मजा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत रिलेट किया मेरे साथ. तो ये एक बहुत ही बढ़िया सफर रहा है. तो आपसे बातचीत जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 104.2 माय एफएम. चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं. Wow, thank you so much. Wow, wow. That was so amazing. That was so Thank cool. you guys. It really felt like we were a part of a radio show. Yeah, I felt like a guest, not you. Amazing. Thank you so much, Vaishnavi, for taking out the time to do this. Honestly, thank you so I much. loved it. I'm mesmerized by your radio jockey voice. I will definitely tune in sometime to the Yes. Nasik radio to listen to you. Thank you so Sure, much. sure.